Yes, up to this part we were there and we were just discussing this part. Okay, so I am going to start from this now. So we have done yesterday that average cost is the per unit cost of production. It has further two parts, average fixed cost and average variable cost. Average fixed cost is equal to per unit fixed cost of production. Formula is total fixed cost या simply fixed cost, total word बोले या ना बोले hardly matters, fixed cost divided by output. Similarly, average variable cost is the per unit cost, per unit variable cost of production. Formula is total variable cost divided by output. Q stands for output. So then AC has two components. Then we prepared this table. Either we can calculate AC with the help of this simple formula, total cost divided by Q, or we can add these two columns. Both mean the same thing. As per the situation, we can apply either this or that method in the numericals which we are going to do after the theory work. Okay? Then we have done this, all the three average cost curves in the single diagram. तो एवरेज कॉस्ट कह दें और एवरेज टोटल कॉस्ट कह दें, हार्डली मैटर्स, बोथ मीन द सेम थिंग. डोंट वरी, पेपर में एटीसी आ गया तो सोचना नहीं है एटीसी क्या है. एटीसी मीन्स एसी. ठीक है. सो out of these three, only this AFC is continuously falling because a given constant fixed cost is again and again that is being divided by increasing number of units of output. That means it will keep on falling. But rest of the two cost curves, AVC and AC, their shape looks like U alphabet of English. Now, why this U shape? Question is this, कि ऐसी ही shape क्यों बनती है, इसका क्या reason है? Reason is this, first reason that I told yesterday also, कि जो AC है, it depends upon the summation of this ABC and this AFC. As we can see from this table, इस AFC और ABC को add करके ये बनती है. तो since it depends upon these two components, तो इस करके, and this ABC component is more important. It plays important role, active role, dominant role. तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है AC के ऊपर. ये जो AFC है, नो डाउट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इसका कंपैरेटिवली इसका असर कम होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. और ये AVC का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो AC इज द सम ऑफ दीज टू. तो एक तो ये रीजन है. सेकेंड जो मेन रीजन है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन बेसिस ऑफ द law of variable proportion. Now, what is law of variable proportion? This we will do in detail in the next term. ये आगे एक lesson आएगा production function. At that time we will do in detail. Right now I just tell you the very brief definition. ठीक है. वो घबराना नहीं कि हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आगे हमने डिटेल में बाद में करना है. So अभी there is no need of wasting time on that. But क्या है that I am going to tell you. वेरिएबल प्रपोर्शन का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन द शॉर्ट पीरियड, नाउ वी नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट पीरियड. ठीक है. थोड़े टाइम में टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं एक कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए. एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स एंड अदर इज वेरिएबल फैक्टर. जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, परमानेंट स्टाफ, these come under the category of fixed factors जिनको बार बार which cannot be changed. But on the other side, रॉ मटेरियल, पेट्रोल, डीजल और इनपुट्स, जो भी स्टॉक चाहिए, जो भी काम करने के लिए लेबर, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर वेरिएबल फैक्टर विच कैन बी रिप्लेस्ड, विच कैन बी चेंज्ड. ठीक है. तो क्योंकि शॉर्ट पीरियड में बोथ टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर यूटिलाइज्ड, तो देन व्हाट हैपन्स व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स आर देयर नंबर इज इंक्रीज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर्स, देन in the beginning, firstly, total production increases. Okay. Then after that total production becomes minimum possible and then maximum possible, and then after that total production starts declining. Listen again what I am saying. As number of variable factors is increased along with fixed factors, then initially total output increases, becomes maximum, and then it starts declining. As a result, what happens to average cost? Initially, see, total return. Return word का मतलब होता है काम करने के बाद होने वाला एडवांटेज, फायदा. आम बोलचाल में जिसको प्रॉफिट कह देते हैं.
आप या मैं कोई भी काम करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या रिटर्न मिलेगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा। हम सारे ही ऐसे सोचते हैं। तो उसी चीज़ को प्रोडक्शन फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट में द सेम थिंग इज़ कॉल्ड रिटर्न, काम करने के बाद मिलने वाला फ़ायदा, ठीक है, बेनिफिट। तो जब टोटल बेनिफिट इंक्रीज होता है, तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम उसी बात को कॉस्ट की टर्म्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा खर्चा कम हो रहा है जी। प्रॉफिट तभी ज़्यादा होता है ना जब हमारे खर्चे कम हो और हमारी इनकम ज़्यादा हो रही हो, तभी प्रॉफिट होता है। अगर हमारी इनकम कम है और खर्च ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होता बल्कि लॉस होते हैं एट दैट टाइम। तो सेम थिंग इज हियर कि जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, टोटल रिटर्न इंक्रीज करती है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है। ये मिनिमम पॉइंट से पहले, नाउ यू सी इट इज़ फॉलिंग। तो एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो बड़ा खुश होगा कि मेरा ऑन एन एवरेज मेरा खर्चा कम हो रहा है। इज इट और नॉट? किसी का भी खर्च कम हो प्रोडक्शन करते करते तो अगले को हैप्पीनेस ही होगी, अगले को खुशी होगी, वो एनकरेज्ड, ही विल फील एनकरेज्ड कि मैं और प्रोडक्शन करूं, मुझे तो फायदे हो रहे हैं, मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करती है या टोटल रिटर्न्स इंक्रीज करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम एवरेज कॉस्ट मीन्स ऑन एन एवरेज ये कम होती जाती है। बट नाउ दिस सिचुएशन विल नॉट रिमेन फॉर एवर कि सारी उम्र प्रॉफिट ही होते रहे, ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, फिर एक पॉइंट आता है कि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम भाई जितनी को हो सकती है, जितनी भी पॉसिबली हो सकती है मैक्सिमम। तो जब वो मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम पॉसिबल। ऑपोजिट करना है, रिवर्स, एक बढ़ता है तो इधर कम होता है, ठीक है। आफ्टर दैट जब टोटल प्रोडक्शन कम होती है, डिमिनिश होती है, तो ये एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये वाला मिनिमम पॉइंट के बाद का। तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसी है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, at that time average cost falls. When there are maximum returns, average cost becomes minimum possible, उल्टा बोलना है, ठीक है। And when returns start diminishing, returns start falling, तो at that time average cost starts increasing. तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ, ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इट टेक्स द शेप ऑफ यू अल्फाबेट, ठीक है। अभी के लिए आपने बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट PT3 टर्म में। एट दैट टाइम वी विल डू इन डिटेल एंड एट दैट टाइम आई विल अगेन रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, वी विल कोरिलेट, तब दोबारा से ये बताऊंगी, तब आपको और क्लैरिटी के साथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर राइट नाउ, for the time period we have to understand only this much, ठीक है। So due to application of law of variable proportion, average cost takes U shape, ठीक है जी। This is all about this concept. Now next, now you remember three concepts we are doing. Total cost, average cost हो गया हमारा, total cost we have done. Now we are going to start the next one, marginal cost, ठीक है, ये वाला। So please write the definition. I speak, you please note down. Marginal cost is the addition to total cost. You may note down, this is important. Marginal cost is the addition to total cost when one more unit of output is produced. When one more unit या one extra unit of output is produced. I repeat, marginal cost is the addition to total cost when one more unit of output is produced. ठीक है, जब भी एक एडिशनल यूनिट को बनाया जाता है तो उसके ऊपर आने वाला खर्चा, ठीक। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, मान लो सक्षम लेखी एक बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो उसने कोई भी चीज़ के 10 यूनिट्स बनाए और खर्च हो गया इसका 800 रुपीज़। प्लीज़ नोट डाउन, सक्षम लिखिए, खुश नहीं होना, नोट करिए। 10 चीज़ें बनाई हैं आपने और पैसे खर्च हो गए, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 800 रुपीज़, ठीक है। फिर अब आप उसके बाद नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 11 आइटम्स, 11 यूनिट्स आप बनाते हो और आपका खर्च हो गया 1000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। आपने 10 चीज़ें बनाई, यू प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स एंड योर टोटल कॉस्ट इज, जो पैसे खर्च हुए, दैट इज 800। नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 11 items, 11 units of output and your total cost becomes equal to 1000 rupees, ठीक है।
अब आप कैलकुलेट करके जरा मुझे बताइए कि आपने जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, एक एडिशनल हो गया ना, पहले 10 थे अब 11 हो गए, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट विच यू हैव प्रोड्यूस्ड, वट एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैड स्पेंट ऑन दैट, उस एक एक्स्ट्रा चीज के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए? 1000 माइनस 800, यही होगा ना। 10 चीजों पे तो 800 रुपए पहले से ही खर्च हो रहे हैं, 11वीं चीज बनाई तो आपके 1000 रुपए खर्च होने शुरू हो गए। इसका मतलब वो जो 11th आइटम एक्स्ट्रा बनाई तो उसके ऊपर आपके एक्स्ट्रा कितने पैसे खर्च हुए? 1000 माइनस 800। उस 11th चीज के ऊपर आपके 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए, ठीक है। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, वही जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट, जिसको मैंने बोला वन मोर यूनिट। तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया जाता है, उस एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर जितना खर्चा हुआ, तो वो कैसे पता चलेगा? टोटल कॉस्ट में आने वाले डिफरेंस को हम निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? यू कैन नोट डाउन, you can see this and then you can note down also. कोई भी लिख लो पहले, आपकी चॉइस है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन आउटपुट, क्यू मीन्स आउटपुट, ठीक है। ये टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला बन गया चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक। तो अभी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो जरा, मैंने क्या बोला था एग्जांपल, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया? 1000 माइनस 800 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट कितना आया? 11 आइटम्स हैं, नई बनाई, पहले 10 आइटम्स थी, तो आउटपुट में चेंज आया ऑफ 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। इधर वी कैन अप्लाई दिस मेथड or we may make use of this method also. Note down, MC is equal to marginal cost. It is denoted by MC. Marginal cost is equal to TCN. Short form में लिख रहे हैं, TC means total cost. Total cost of n units, small n नीचे करके लिखना है, TCN माइनस, ये माइनस का साइन है, थोड़ा सा डिम सा है, दिख नहीं रहा, बट आपने माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस TCN माइनस 1, ये बीच में माइनस का साइन है। It is given in the book also, formula is given there also, TCN minus TCN minus 1, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? TCN means total cost of n units, n number of units, जितने भी बनाए हैं। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 100, 200, 400, 500, जो भी नंबर है, जितनी भी आउटपुट बनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस, इसका मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? अब नाउ लेट अस सी, अभी जो एग्जांपल बोला है उसी के अकॉर्डिंग देखो जरा। आप प्लीज एक साइड पे अपने रफ काम में लिखो, आउटपुट लिखिए, आउटपुट क्यू, क्यू का कॉलम, उसके नीचे लिखो कितनी आउटपुट है, पहले है 10 यूनिट्स, उसके नीचे लिखिए 11, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में ऊपर लिखो टोटल कॉस्ट, 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी, उसके सामने प्लीज राइट डाउन 800, और जो 11 यूनिट्स थे उसकी टोटल कॉस्ट कितना था? 1000, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है जो 11th यूनिट है उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर कितना खर्च आया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, n मतलब 11th यूनिट की टोटल कॉस्ट, वो कितनी है? यहाँ इस इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 1000 माइनस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 11th में से एक यूनिट माइनस कर दो, मतलब कि पिछले वाला यूनिट, 10 11 माइनस 10 दैट इज 10th आइटम, 11 माइनस 1 दैट इज 10th आइटम। तो 10th आइटम की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 800। तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग, 1000 माइनस 800 अगेन इक्वल्स टू 200। मीनिंग इज कि इधर वी यूज दिस मेथड और वी यूज दिस मेथड, आंसर हमारा 200 ही आना है, जैसे मर्जी आप कर ले, ठीक है। तो दैट 200 इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट, ठीक। अच्छा, अब नाउ वी कैन एक्सपेंड दिस फॉर्मूला कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका व्हाट इज इट्स रिलेशन विद वेरिएबल कॉस्ट। अब वो क्या है? नाउ लेट अस सी, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, नाउ यू नो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ, कौन कौन सी कॉस्ट को ऐड करके बनती है? इट इज द सम ऑफ, पहले किया ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, इन ब्रैकेट वी कैन राइट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट के बाहर वी कैन राइट n यूनिट्स, ये वाला n, ये वाला, ठीक है। माइनस, सेम माइनस का साइन। अब इन प्लेस ऑफ दिस टोटल कॉस्ट अगेन इसकी वैल्यू लिख दो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ब्रैकेट में
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज्ड, ये वाला n-1 ब्रैकेट के नीचे, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स एंड सी द साइंस, क्या चेंज आता है, लेट अस सी। ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो इसका मतलब ये जो n है ये पूरी ब्रैकेट के साथ कॉमन है, तो दैट मीन्स अगर इसको ओपन करेंगे तो ये n विल कम विद फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज विद दिस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के साथ ही आ जाएगा ना। अगर हम खोलेंगे इसको ब्रैकेट को तो ये बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, अभी कैंसिल नहीं करना, वो बाद में करेंगे, अभी आप इतना लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स प्लस ये प्लस का साइन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, मतलब दोनों के साथ इंडिविजुअली n आ जाएगा जब व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, माइनस ये माइनस का साइन। अब जब हम ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्लस का था तो ये इसके आगे तो ऑलरेडी माइनस आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट्स की, n-1 यूनिट्स, ये वाला, ये जो नीचे सब्सक्राइब किया ये इसके साथ लिख दिया सेपरेटली, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स। नाउ ये प्लस का साइन, नाउ इट विल गेट चेंज्ड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ये n-1 यूनिट्स, मतलब ब्रैकेट को खोल दिया, आपने किया हुआ है ये 9th में 10th में, हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स एंड हाउ टू चेंज द साइंस। अब नाउ यू सी, अब आपको अगर याद हो तो पीछे व्हेन वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसमें क्या किया था, वी हैव डन कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, whether level of output is 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी any level of output is there, fixed cost, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, फॉर एग्जाम्पल 10 लिया था, तो सभी में दैट रिमेन्स सेम। इसका मतलब चाहे हमारा फर्स्ट यूनिट है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही है, फिफ्थ यूनिट है तो भी उतनी है, 10th यूनिट है तो भी उतनी है, कोई भी यूनिट हो फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। तो इफ दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम तो दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n यूनिट, मान लो ये 10 रुपीज़ है और ये भी 10 है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, चाहे कोई फर्स्ट यूनिट है, चाहे कोई सेकेंड यूनिट है, थर्ड है, कोई भी यूनिट है वो सेम ही रहनी है, तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसका, तो ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रीज़न कि फिक्स्ड कॉस्ट, यू कैन राइट हियर ऑन वन साइड, अगर आपको नहीं याद आ रहा है यहाँ साइड पे ब्रैकेट में लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम at all levels of output. Fixed cost, this is the property of fixed cost that it remains same at all levels of output. So that is why since it is same, so these values will get cancelled, ये वाली fixed cost and this fixed cost they will get cancelled. So then what are we left with? We are left with this value, variable cost of n units minus ये वाला variable cost of n-1 units, ठीक है। तो now write it like this, टी लगाना है लगा दो, सीधा ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये बच गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स। ईदर यू कैन राइट दिस वे, और अगर आपका दिल करता है बुक में टी लिखा हुआ है आपने, यू वांट टू राइट, यू मे ऑल्सो राइट, अदरवाइज बोथ मीन द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टी लिखो या ना लिखो, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो टीवीसी n माइनस टीवीसी n-1 यूनिट्स और VCn माइनस VCn -1 यूनिट्स both mean the same thing, that is equal to marginal cost. So meaning is this कि जो marginal cost है that can be calculated from total cost as well as it can be calculated with the help of variable cost, दोनों से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो now let us understand with the help of table and diagram. So please make a table, output column, total cost का column and marginal cost का column. As we have done in the previous concepts, सभी के साथ में table and diagram is to be prepared. So output column, let us take values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now total cost. Now please check your previous table. कल वाला जो table किया था ना, वहाँ से check करके note down the same values of total cost. पिछले पेज पे चेक करो जहाँ भी आपका total cost वाला कॉलम है, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72, ठीक है। ये अगर ये भी याद ना हो तो एक और आई टोल्ड यू सिंपलेस्ट वे, आपको बस दो चीज़ें याद करनी चाहिए, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट याद कर लो 10, 10, 10, ठीक है, एक यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो पता चल ही जाता है 0 से लेके 7, 8 तक, और एक आप यू लर्न वेरिएबल कॉस्ट, ठीक।
कुछ भी और नहीं भी समझ में आता है, इफ यू हैव लर्नड दीज टू कॉलम, आप अपने रफ काम पे दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट दिस टोटल कॉस्ट. ठीक. नाउ वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट. नाउ marginal cost, now let us apply this formula TCN minus TCN minus 1 units. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है, अब यूनिट ऑफ आउटपुट है जीरो, मतलब कुछ भी नहीं बनाया, कोई प्रोडक्शन नहीं की, जीरो का मतलब नथिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड. तो अब इसके पहले क्या है आउटपुट पता ही नहीं, जब कुछ बनाया ही नहीं तो क्या पता चलेगा. तो टोटल कॉस्ट से पहली क्या कॉस्ट होगी, माइनस में तो प्रोडक्शन नहीं ना होती है, प्रोडक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होती है. तो इसके पहले जब हमें पता ही नहीं है, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट व्हेन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज देयर, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड. इसके बारे में वी कांट से एनीथिंग बिकॉज नथिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड. सो दैट इज वाई दिस नील साइन हैज बीन यूज्ड. नील माइनस का जैसे होता है ना, माइनस नहीं है ये, डैश या हाइफन बोल दो या नील का साइन बोल दो. सो दिस इज टू बी यूज्ड हियर. रीजन बीइंग इज कि देयर इज जीरो आउटपुट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट any other previous work, कुछ भी नहीं पता है, so it can't be determined. Now next, अब TCN मतलब ये फर्स्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट, ये हो गई 20 माइनस TCN माइनस 1. n कितना है 1, 1 में से 1 माइनस करो तो क्या हो गया जीरो. जीरो यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है 10, तो क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं, फिर से सुनो. TCN, N है हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, ये वाला, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 20. ठीक, माइनस ये वाला फॉर्मूला का माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. n मतलब इस यूनिट में से इसके पहले वाला यूनिट माइनस करो, तो 1 माइनस जीरो मतलब 1 माइनस सॉरी n माइनस 1, 1 माइनस 1 ये फॉर्मूला का 1, तो कैंसिल हो गया जीरो. तो जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट की टोटल कॉस्ट कितनी है 10, तो ये क्या फिर आ गया हमारे पास 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. नाउ सेकेंड यूनिट की टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, दैट इज 20, कितना है ये 28. ठीक है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, n है 2, ये वाला 2, 2 में से 1 माइनस करो मतलब ये 1. सिंपल वर्ड्स में इसके पहले वाले यूनिट की टोटल कॉस्ट दैट इज ये 20, तो कितना हो गया 28 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 8. सीधा ही आप देखो, आपको अगर याद हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर में हमने किया था हाउ टू प्रिपेयर CF फ्रॉम F एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हर एक नेक्स्ट में से पिछले वाले को माइनस करते जाओ, यू विल गेट दिस वैल्यू सीधा. ये हो गया हमारा 20 माइनस 10 फर्स्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड, फिर 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 20 8, फिर 34 माइनस 28 6, फिर 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4, 48 माइनस 42 6, फिर 56 माइनस 48 8, 72 माइनस 56 16. Means from each successive value previous value is to be subtracted. फॉर्मूला यही है, ये वाला ही, हर एक नेक्स्ट में से पिछला माइनस करते जाओ, यू विल गेट दिस मार्जिनल कॉस्ट. नाउ इफ वी ऑब्जर्व दिस कॉलम वेरी केयरफुली, तो देन वी कम टू नो अबाउट 3 फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. 3 चीजें हमें क्वाइट विजिबली हमें हमारे सामने आ रही हैं. क्या आ रहा है, एक तो आप ध्यान से देखो, इन द बिगनिंग ये क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज डिमिनिशिंग, ये कम हो रहा है ना, पहले 10 है, फिर इट इज 8, देन इट हैज बिकम 6, फिर ये 4 हो गया, ये कम हो रही है. तो इसका मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि एज आउटपुट इज बीइंग इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होती है, डिमिनिश करती है. डिमिनिश मीन्स कम होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है. उसके बाद जब ये 4 पे आ जाती है, ये दोनों 4 कॉमन ही है, ये मिनिमम पॉसिबल है, मतलब 4 वैल्यू 4 नंबर सबसे कम नंबर है, तो ये मिनिमम भी होती है. आफ्टर दिस नंबर 4 मिनिमम वैल्यू के बाद, नाउ व्हाट डू वी सी, कि अब इसके बाद भी अगर और प्रोडक्शन करते हैं और यूनिट्स बढ़ाते हैं, तो देन नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. 4 के बाद देखो ये 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 हो गया, और आगे करे और भी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रही है. तो दैट मीन्स 3 फीचर्स आर देयर कि फर्स्टली इट डिमिनिशेज, देन इट बिकम्स मिनिमम पॉसिबल, then it starts increasing. ठीक है, now the same thing is to be shown with the help of diagram. So please draw. On x-axis write down output, on y-axis write down marginal cost.
So we don't have to plot the points. एक एक point नहीं लगाना है, सीधा we can draw this type of shape we will get. Again, this is U. This looks just like U alphabet. ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट एक्सटेंडेड रखते हैं. उसका रीजन ये है कि आगे हमने टेबल तो वी हैव रिस्ट्रिक्टेड अप टू 8th यूनिट ऑफ आउटपुट, बट अगर और भी वैल्यूज ले तो ये इट कंटिन्यूसली कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये कम नहीं होती है, फिर एक बार बढ़ने के बाद इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो दैट इज वाई थोड़ा सा लाइन को लंबा कर दिया. अदरवाइज आप जितना भी रखना है यू कैन कीप. सो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड हियर. जो ये प्रॉपर्टी है वही शो हो रही है कि पहले जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं ना, ये 0 1 2 3 4, तो ये मार्जिनल कॉस्ट पहले डिमिनिश करती है, रिड्यूस होती है. फिर ये 4 पे आके जब आउटपुट का यूनिट 4 और 5 है तो ये मिनिमम हो जाती है. उसके बाद भी अगर और आउटपुट बढ़ाते हैं इधर से 4 5 6 7 8 या जितनी भी ज़्यादा करते हैं, देन इट ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है जी. इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो आता है वो आता है डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट या गिव फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं. नाउ नेक्स्ट प्लीज कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. प्लीज see in your book there is one box given जहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स टू नोट. मैं दिनेश पब्लिकेशन की बुक से बोल रही हूँ, बाकी कोई बुक्स में कुछ और तरह से भी लिखा हो सकता है, मीनिंग एक ही है. तो उसमें यही बताया हुआ है, ये जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था ना, ये टीवी ये वाला पार्ट, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, ये वाले पार्ट को, ये जो इलेबोरेशन. द सेम थिंग हैज़ बीन टोल्ड हियर कि भी जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट कैन ईदर बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट और इट कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, बस ये सेम ही दिया हुआ है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ नेक्स्ट इज relationship or behavior of short run cost curves. Now I have not drawn this table here because this is nothing but the repetition of all the previous tables. You please see in your book. Relationship or behavior of short run cost curves is summary. One table is given, है ना. तो आपने since we are not using the values which are given in the book, we have prepared table with our own values. तो you are advised to make one table. उसमें यू कैन सी नाउ ऑल द कर्व्स, ऑल द कॉस्ट जितनी भी अब तक की हैं, सभी के कॉलम बनाए हुए हैं. तो ये आपने अपने आप करना है. ठीक है, हेडिंग आप लिख लो, कॉलम की फॉर्म में टेबल की आप बना लो. मैं बोल देती हूँ कौन कौन से कॉलम बनाने हैं. बट द वैल्यूज विच वी हैव डन वी हैव यूज्ड इन द क्लास, दिस जूम क्लास, जो टेबल की वैल्यूज यूज की है ना, प्लीज मेक यूज ऑफ दोज वैल्यूज ओनली. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम आउटपुट, उसके बाद सेकेंड कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट. आप ऊपर ऊपर हेडिंग लिख लो, करना अपने बाद में है फ्री टाइम में. फर्स्ट कॉलम आउटपुट, सेकंड कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड कॉलम वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कैसे निकालने, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड करके. ठीक है, एडिशन. उसके बाद फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देन यू विल कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है जी. देन now you have to calculate average cost. Again, as I told earlier, that is your wish. Average cost can be calculated either by adding average fixed and average variable cost. You may apply this method, or you can directly divide total cost by output. Both will give you the same values. ठीक है. And last में which column is left? Last one अभी जो किया हमने marginal cost. सो ये आपको ऐसे पेपर में नहीं आएगा, इट विल नॉट अपीयर इन पेपर. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस. नाउ यू सी इन दिस टेबल, इन दिस समरी टेबल, वी हैव कवर्ड ऑल द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स. सारे ही आगे जो अब तक किए हैं सभी कॉन्सेप्ट आ गए. ठीक है, तो आपने करना क्या है, 2 कॉलम आप याद करोगे ना, इट इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप सारे कॉलम यू कैन कैलकुलेट. एक आप याद कर लो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू, एक आप याद कर लो वेरिएबल कॉस्ट की. बाकी सब तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वही आप करोगे तो यू विल गेट फाइन. तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट मेक दिस टेबल अगेन, बिकॉज सेपरेटली वी हैव डन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अप टू नाउ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट यहाँ से हमने करना है बिहेवियर ऑफ दिस AFC, ABC, AC एंड MC. नाउ यू सी वन इंटरेस्टिंग वर्ड इज गिवन. ये सारी जो कॉस्ट कर्व्स है ना, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, मार्जिनल, इन सबको क्या कह देते हैं, जैसे हमारी फैमिली होती है ना,
तो ऐसे ये ऑल दीज कॉस्ट कर्व्स, इनको कह देते हैं फैमिली ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। फैमिली, जैसे याद है आपको एक लास्ट एक पीछे लेसन में किया था ना, दिस इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। तो ऐसे ही ये सारी कॉस्ट को भी फैमिली भी कह देते हैं, फैमिली ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी, नाउ यू प्लीज सी दिस डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन हियर, बुक में भी वही सेम ही डायग्राम है। तो अब यहाँ पर हमने AFC को इग्नोर करना है। इग्नोर इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, बिकॉज उसकी शेप डिफरेंट है ना, तो उसको थोड़ा अलग रखना है, वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करती है। यहाँ पर हमने सारी, वी हैव टू शो ऑल दीज यू शेप्ड कर्व्स, इनको पहले स्टडी करना है। ठीक है, तो अब आप देखो, फर्स्टली यू ड्रॉ दिस, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्टली ड्रॉ दिस ABC कर्व, फर्स्ट स्टेप इज दिस, ये ABC को ड्रॉ करिए। फिर इसका जहाँ भी आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग मिनिमम पॉइंट आ रहा है, वहाँ एक थोड़ा सा डॉट सी लगा लो, कि भी आपको पता चल जाए कि दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, फिर इसके ऊपर नाउ ड्रॉ AC कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, इसके ऊपर। बट व्हेन यू ड्रॉ, प्लीज यू शुड कीप इन माइंड, यहाँ गैप ज़्यादा होना चाहिए टूवर्ड्स द राइट साइड, ये गैप, दोनों के बीच का गैप कम होना चाहिए। ठीक है, so this is average cost curve। again highlight its minimum point, ये वाला जो थोड़ी सी डार्क सी डॉट you are seeing, this is minimum point। now you have to draw marginal cost, ये वाली, ये marginal cost थोड़ी ऊपर से भी स्टार्ट करनी है तो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। now this is marginal cost, इसका जो minimum point है, it is coming before the minimum point of this ABC। ये देखो, ये यहाँ पर है, और ये MC का मिनिमम पॉइंट इसके पहले ही आ जाता है ये। ठीक है, तो व्हेन यू हैव टू ड्रॉ, प्लीज बी केयरफुल, MC को ऐसे इस हिसाब से आपने ड्रॉ करना है कि आपका ये मिनिमम पॉइंट पहले आए। देन यू पास दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ दीज टू कर्व्स। मतलब ऐसे लाइन इज टू बी ड्रॉन कि आपकी लाइन शुड पास फ्रॉम दीज मिनिमम पॉइंट्स, फिर ऊपर जानी चाहिए। ये अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ मैं कि ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ये दिस इज द रिलेशन। अगर हम प्रॉपरली पॉइंट्स को प्लॉट करके करें ना, जो पीछे सारे टेबल्स बनाए हैं, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप्स। तो सिंस देयर इज नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, डायरेक्टली वी कैन डिराइव द कर्व्स, सो दिस टाइप ऑफ कर्व वी विल गेट। ठीक है, अब आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। Time is almost over, bete. Relation we will discuss tomorrow, because any time meeting will come to an end. It's already 11:40. So please today do practice of diagrams, और relation क्या है वो कल discuss करेंगे। पहले इनका relation, फिर ये AC और MC का relation, ये कल करके then most